Aspirants, and welcome back to our channel. Today we'll have the Hindu analysis dated 27th September 2021. So let's start today's discussion. The first article states that India needs 4 to 5 more banks like SBI. The finance minister says access to the banking should be improved through the technology. Now, talking about the background of this article, there was a recent meeting of IBA, that is the Indian Banking Association, where our finance minister Nirmala Sitharaman said that we need more bank or like SBI so that we can improve the financial sector of India, or else we can say because of the post COVID situations we need such banks so for the more recovery at a larger pace. Okay, so first we'll read the article, what does the article means, and then we'll move to the association about IBA, when was it formed, and little more things to be known about it. Now, Union Minister and Corporation Affairs Minister Nirmala Sitharaman on Sunday said India would need 4 or 5 more banks like SBI. Okay. Next thing, the way in which the economy is shifting from a different plane together, the way in which industry is adapting, so many challenges are keep arising. The address to this challenge would be just more now, but the bigger bank. She stated that because of the post pandemic situation, after the post pandemic situation our economy has been in a mess, so that can be only way through which you can improve is by having a bigger bank. By establishing a bigger bank, then only you can establish your economy. So bigger bank here means banks like SBI. Okay. Next thing is that exhorting the banking industries to imagine how banking has to be in immediate long future. She said if we look at the post COVID scenario, India's banking counter will have in a very unique to India, underlying the importance of the seamless and connected digital system. A sustainable future is needed for India's economy. Okay, so therefore she urged to IBA, that is Indian Bank Association, in every district through a rationalized approach with the use of utilizing the current technology. She stated that to the IBI that at least we need the today's banking in every year to be every area to be actually fully adapted by the technologies that are available in India. Okay, so we should use the technology that have been given that have been made for us, so that we can make our financial sector more effective and more advanced. Next is the financial inclusions, you can say the IBI should take the initiatives and complement government's efforts for financial inclusions and enhancing the access of financial services, especially the unreserved and the underserved area. Okay, so landing to the efforts of IBI for having come together for the establishment of National Asset Reconstruction Company Limited, National Asset Reconstruction Company Limited. It is this organization or this agency is an agency that helps these some of the bodies of economy to have a stabilized body, reconstruct it or to make it in a proper way. सो ये जो हाँ हमने जो बात किया था सारे ही बैड बैंक्स या जो एनपीए को लेगा, ठीक है, उसको लेके खरीदेगा एंड देन दे विल सॉल्व इट. सो दिस डिसीजन वाज आल्सो टेकन बाय आईबीआई, जिसकी वजह से उसकी फंक्शनिंग स्टार्ट हो गई है. ठीक है, सो हाँ एनपीए इट इज़ अ सॉरी
NARCL, it is a stimulation which is intended to clean up the bank's asset and disposes of the NPA, that is the non performing assets. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को खरीद कर उसको पूरी तरह डिस्पोज करना या फिर अपनी इंडियन इकोनॉमी में उसको वापस से यूज़ करना, इज दैट द मेन रीज़न और द मेन एम ऑफ दिस बॉडी. So this article is stating that our minister states that we need more such banks with the adapted or with the advanced technology, so that we can say in the current situation we can work in a more effective manner. Then now we'll study about the body or the agency which is known as IBA. ठीक है. सो IBA इज द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन. ठीक है. इट इज एक्रोनिम्ड एज IBA. ठीक है. एंड इट इज रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द बैंकिंग्स इन द इंडिया. ठीक है. इंडिया में जितने भी बैंकिंग्स हैं उसके प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो है IBI करता है. नाउ IBI की बात करूँ, अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, तो रिसेंटली इट वाज इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ दी NARCL. NARCL के बारे में अभी हमने देखा, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जो कि सारे ही NPAs को लेकर इट विल कन्वर्ट दिस NPA इनटू अ परफॉर्मिंग एसेट्स. ठीक है. उसके लिए करंटली न्यूज़ में था. अब अगर प्रॉपर इस बॉडी के बारे में पढ़ें कि ये बॉडी है क्या, सो दिस इज़ एन एसोसिएशन ऑफ इंडियन बैंक और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. ठीक है. जो कि इंडिया के सारी ही बैंकिंग की ऑपरेशन करता है. ऑपरेटिंग बॉडी जो है IBA है. इसका फॉर्मिंग टाइम अगर मैं बताऊँ, एस्टैब्लिशमेंट जब ये बना था तो इट वाज मेड September 26, 1946 को. ठीक है. 1946 को मुंबई में ये फॉर्म हुआ था. नेक्स्ट थिंग इज कि इनका वन ऑफ द मेन वर्क इज दे अडॉप्ट द कंसल्टिव अप्रोचेस टू गिव इट्स व्यू ऑन द इश्यूज. अगर किसी भी बैंकिंग सेक्टर में किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, दे कैन अप्रोच IBI एंड IBA विल ट्राई टू सॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल. ठीक है. सो वी कैन से इट इज़ अ मैनेजिंग कमिटी विच मैनेजेस ऑल द रिलेटेड वर्क्स ऑफ ऑल द बैंक्स इन इंडिया. ठीक है. इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ वन चेयरमैन. ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ वन चेयरमैन. उसके साथ देर आर 3 डेप्यूटी चेयरमैन एंड 1 ऑनररी सेक्रेटरी. टोटल अगर हम बात करें, हेड बॉडी से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो हेड बॉडी से अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहले तो एक उनके ये 1 चेयरमैन होंगे. इनमें एक चेयरमैन के बाद 3 डेप्यूटी चेयरमैन होंगे. 3 डेप्यूटी चेयरमैन के बाद एक उनके ऑनररी सेक्रेटरी होंगे और टोटल 26 मेंबर्स होंगे इनके अंडर. ठीक है. सो दिस इज द वर्किंग स्ट्रक्चर ऑफ IBA. करेंटली अगर हम बात करें, करेंटली जो चेयरमैन है दैट इज श्री राजकिरण राय इज द करेंट चेयरमैन ऑफ IBA. और जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो ऑनररी सेक्रेटरी जिसको हम बोल सकते हैं, दैट इज़ श्री सुनील मेहता. ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव. करंटली इनिशियली पहले जो था, जब ये फॉर्म हुआ था 1946 में, उस टाइम पे इनके अंडर 22 बैंक्स थे. जब इट वॉज फॉर्म्ड इन 1926, इट हैड ओनली 22 बैंक्स फंक्शनिंग अंडर इट और रिप्रेजेंटेटिंग दी 20 बैंक्स. currently अगर हम बात करें, आफ्टर दैट currently there are 241 बैंक्स दैट आर रिप्रेजेंटेटिंग दी IBA. जो IBA की मतलब IBA जिनकी ऑपरेटिंग देखता है, तो दैट इज़ 241 बैंक्स. अब ये आता है कि IBA के अंदर कौन से बैंक्स आते हैं, सिर्फ प्राइवेट आते हैं, सिर्फ पब्लिक आते हैं, सिर्फ रूरल आते हैं, कि क्या आता है. सो इनके अंदर ये इट कंप्राइजेस ऑफ सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर्स के बाद पब्लिक सेक्टर बैंक, दोनों को पब्लिक सेक्टर के बाद फॉरेन सेक्टर बैंक, फॉरेन सेक्टर बैंक के बाद कोऑपरेटिव बैंक भी इसका पार्ट है, रीजनल रूरल जिसको RRB भी बोलते हैं, रीजनल रूरल बैंक भी आता है. ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस बैंक और दिस एसोसिएशन और एजेंसी. सो सभी तरह के बैंक्स आर मोस्टली इंक्लूडेड अंडर इट.
इनकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अगर IBA की ऑब्जेक्टिव्स अगर आप लोग को लिखने हो तो यू कैन राइट IBA का सबसे पहले टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, contributing development is the first goal or aim of them. Second is to promote and develop the progressive banking principle, that is to promote and develop the progressive banking principle. Then to develop and implement new ideas and innovation, कुछ creative ideas या innovation अगर आया हो तो they can use it, new ideas and innovation. Then to organize and cooperations on procedural, legal, technical, administrative. अभी जैसे कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला वी नीड सच मोर बैंक, तो उसके रिलेटेड अगर कुछ ऐसा इनके दिमाग में आया कि ऐसा कुछ चेंजेस कर सकते तो वो इसमें ला सकते हैं. टू एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर डिसेमिनेशन और एक्सचेंज ऑफ स्टैटिकल डेटा, जैसे कि अभी ये बॉडी बनाई गई NARCL, तो वो क्या है? टू क्लीन अप दी जो एसेट्स, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रखे उसको क्लीन करना, उसको ख़त्म करना ताकि उसको हम प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर सके, ठीक है. देन वी कैन ऑल्सो से टू प्रमोट द एजुकेशन एंड नॉलेज ऑफ लॉ एंड प्रैक्टिसिंग ऑफ बैंकिंग. फिर उसके बाद आप और भी कंसिडर कर सकते हो कि टू प्रोजेक्ट अ गुड पब्लिक इमेज ऑफ बैंकिंग, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी सबसे सिंपल एग्जांपल अगर हम दें, हम किसी क्लास के मॉनिटर रहते हैं तो हमको हमारे क्लास के बारे में सुनना बहुत पसंद होता है, राइट, किसी वो अच्छी चीज़ें सुनना है. तो वैसे ही इनका भी काम है टू शो अ गुड इमेज ऑफ बैंकिंग ताकि पीपल कैन ट्रस्ट देम एंड इन्वेस्ट इन द डिफरेंट बैंक्स ऑफ इट. एंड देन टू मेंटेन अ क्लोज एंड कोऑर्डिनल रिलेशंस विद द RBI, ठीक है. RBI हो गया, ऑल इंडिया ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, देन चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्रीज हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, सबके साथ कोऑर्डिनल रिलेशन मेंटेन रखना इज़ वन ऑफ द मेन मोटिव्स ऑफ IBA, ठीक है. सो दिस आर सम ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IBA. सो आई होप सो इसकी चीज़ के बारे में क्लियर हो गया होगा आपको IBA क्या है और करंट न्यूज़ में आने का टॉपिक क्या था. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट्स दैट बीजिंग लासा की रोड लिंक कंप्लीटेड पार्ट्स ऑफ चाइनाज इंफ्रा पुश इन तिब्बत. अब इस आर्टिकल के अंडर हम पहले इनके बारे में देख लेंगे क्या बोल रहे हैं ये, कि कहाँ पे बनाया है इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर. उसके बाद इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे क्यों इंडिया के लिए वो थ्रेट है, या क्यों इंडिया के लिए जो करंट चाइनीज़ डेवलपमेंट हो रहा है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो गया, देन रोड मैप्स पे हो गए, रेल मैप्स पे हो गए, क्यों इंडिया के लिए वो एक थ्रेट है, ठीक है. सो सबसे पहले ये आर्टिकल को अगर अच्छे से समझाना होगा, यू कैन सी हियर इन द मैप, दिस इज चाइना एंड दिस इज तिब्बत. तिब्बत में लासा इधर है, लासा से चाइना के इस प्रोविंस तक एक प्रॉपर रोड मैप बना है, जो कि एक्चुअली 2016 या 14 में क्लियर कर दिया था कि 2021 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा. 15. सो द 435 किलोमीटर सेक्शन फ्रॉम Tianjin Lhasa has become under construction since 2015 and will be finished by 2021, ठीक है. तो पहले आर्टिकल में बता देती हूँ, आर्टिकल में जो की फीचर्स बताए हैं इनके बारे में, और तब हम आगे पढ़ेंगे अबाउट दी डिफरेंट थिंग्स, ठीक है. लासा जो है, लासा आपका तिब्बत में है, और जिस जगह तक कंप्लीट किया दैट इज़ न्यांची, दैट इज़ इन चाइना, ठीक है. सो फर्स्ट थिंग, कंटिन्यूटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर built in Tibet, China has completed a key section of Beijing Expressway. That is about 295 kilometer that stretches from Nakyu अगर मैं मानूँ यहाँ पे ही कहीं है, शायद इस मैप में दिख नहीं रहा है. This section is located at the average altitude of 4,500 meters above the sea level, which Chinese state media have termed the world's highest expressway. चाइना की मीडिया ने ये बोला है कि इट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एक्सप्रेसवे, क्योंकि सी लेवल से अप्रॉक्सीमेटली 4.5 किलोमीटर्स ऊपर है ये हाईवे या फिर ये एक्सप्रेसवे. In a separate development opposite to the central sector of Uttarakhand, the People Liberation Army has set up a surveillance equipments and cameras to have a proper input. यहाँ पर कैमराज लगाए गए हैं फॉर अ प्रॉपर सर्वेलेंसेस, की कोई बाहर की मतलब
बाहर के लोग इस पे इंटरफियर ना करें, ठीक है। नाउ द लासा नाकू सेक्शन इज द पार्ट ऑफ G6 Jising Beijing Lhasa Expressway and is the first expressway linking Lhasa, the capital of Tibet, autonomously region to the North Tibet. It connects PLA. PL हमने अभी देखा था, पब्लिक लिबरेशन आर्मी सेंटर्स थिएटर कमांड, ठीक है। चाइना का जो है उनको पब्लिक लिबरेशन आर्मी के टर्म से बुलाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट। हमने पिछले साल ही और एक पिछले साल हम बोल सकते हैं कि इसके रिलेटेड और भी प्रोजेक्ट्स थे चाइना, जैसे कि चाइना ने यहाँ पर एग्जैक्टली अरुणाचल के बॉर्डर पर रोडवे बनाया है। देन उसके बाद यांग से जो ब्रह्मपुत्रा बोला जाता है इंडिया में, वहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया है, डैम प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया है, ठीक है। सो अगर हम आर्टिकल्स देखें कि चाइना की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग चल क्या रही है या चाइना करना क्या चाहता है अभी करेंटली, सबसे पहले तो जो चीज़ हमें अफेक्ट हुई है वो हम देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, जो मैंने आप लोग को बोला, ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है जिसको यारलुंग जांगपो बोला जाता है तिब्बत में, और इनके यहाँ पे आई थिंक सो यांगजे बोलते हैं, वहाँ पर उन्होंने हाइड्रो डैम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए। देन उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के पास से ही दे हैव मेड अ रेलवे। सो द कंसर्न ऑफ इंडिया, एक एक करके हम पढ़ेंगे क्यों इंडिया को कंसर्न है। सबसे पहले चीज़, जो हाईवे बनाया जा रहा है जिसको जो मेगा यारलुंग जांगबो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बोल रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं इंडिया का जो है डाउनस्ट्रीम अफेक्ट होगा। अब क्वेश्चन ये होता है डाउन स्ट्रीम अफेक्ट क्यों होगा। अभी फॉर एग्जांपल ब्रह्मपुत्रा हमारे यहाँ पे ऐसे एंटर करता है अरुणाचल प्रदेश से, एंड दे आर एग्जैक्टली बिल्डिंग दी प्रोजेक्ट नियर ईयर, ठीक है, डैम यहाँ बना रहे हैं। नाउ फॉर एग्जांपल अगर डैम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, डैम प्रोजेक्ट बनने के बाद दे हैव स्टॉप दी वाटर ईयर, ठीक है। स्टॉपिंग द वाटर दैट मीन्स यहाँ पर पानी नहीं पहुँचेगा उतने एडिक्वेट वे में जो मिलता है। दूसरी चीज़, अगर एक ही बार ये डैम ओपन कर दिया, इट कैन ब्रिंग फ्लड्स टू द अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सो इंडिया का डाउन स्ट्रीम, ये जो डाउन स्ट्रीम है, इट कैन बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। ये प्रोजेक्ट का प्रॉपर नाम लिख देती हूँ मैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। यारलुंग जांगबो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इट कैन ट्रिगर दी डाउन स्ट्रीम ऑफ इंडिया। दूसरी चीज़ अगर मैं बताऊँ, हमारे जो मिलिट्री हैं, जो पर्सनल्स हैं, उनके सप्लाई को अफेक्ट होगा, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ये वाले एरिया में भी हमारा म्यांमार हो गया, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर भी प्रॉपर हमारे आर्मीज डिप्लॉयड हैं, ठीक है। और यहाँ एग्जैक्टली अरुणाचल प्रदेश की जस्ट जॉइनिंग में दे आर मेकिंग दी कंस्ट्रक्शन वर्क्स। तो इट कैन एक्चुअली बहुत इनकन्वीनियंस हो जाएगा हमारे मिलिट्री ट्रूप्स के लिए टू बी डिप्लॉयड देयर। ये भी एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हो सकता है उनका। सो अ मिलिट्री कैन बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ इट, ठीक है। जिसके वजह से क्या क्या फिर उसके बाद अगर मैं बताऊँ, अभी तिब्बत तो हमें पता ही है कि इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइना ओनली, बट देन ऑल्सो वी बिलीव कि तिब्बत से हमारे भी रिलेशंस थोड़े अच्छे हैं बिकॉज ऑफ दलाई लामा, बट कांट से कि आगे क्या हो सकता है। सो एक दो चीज़ें हैं। इंडिया ने इसके लिए क्या किया, इंडिया एक्चुअली स्पेंडेड द 10% फंड्स ऑफ द बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ताकि जो इनके चाइना के प्रोजेक्ट्स हैं उसके साथ कहीं ना कहीं हम अपने में भी इम्प्रूवमेंट लाएँ, ठीक है। देन हमारा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो सुबनसिरी में बन रहा है अरुणाचल प्रदेश में, तो इंडिया ने भी क्या किया टू शो इट, इंडिया ने भी अरुणाचल प्रदेश में एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं दापोर रिंजी जगह पर अपना ये रोड इनिशिएटिव या रोड कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया। सबसे मेन जो रीज़न है एक्चुअली, अगर चाइना कोई भी प्रोजेक्ट इस एरिया में बना रहा है, हमारे लिए सबसे मेन रीज़न बनता है एनवायरनमेंट। अब क्वेश्चन होगा एनवायरनमेंट क्यों। हमारा ये ऐसा है, यहाँ से सेंटिकल बेंड्स होते हैं हमारे हिमालय के, 3 सेंटिकल बेंड्स है हिमालय के। दूसरी चीज़, अगर आप कंस्ट्रक्शन करोगे, वहाँ
जो हिमाचल है, इट इज़ अ हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया, ठीक है। वहाँ पर थोड़ा भी नेचुरल डिस्टर्बेंस करोगे, इट कैन लीड टू ग्लेशियर, ये मेल्टिंग हो सकता है, इट कैन लीड टू लैंडस्लाइड्स, इट कैन लीड्स टू अर्थक्वेक, इट कैन लीड टू सुनामी ऑल्सो, ठीक है। इस जगह पर प्रोजेक्ट करना मतलब इंडिया के लिए, इंडिया के 7 सिस्टर्स डायरेक्टली अफेक्ट होंगे बिकॉज ऑफ इट। और चाइना ये चाहता ही है कि कैसे भी करके 7 सिस्टर्स पे वो लोग अपना कंट्रोल ला ले। जैसे कि चाइना क्या बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा ही पार्ट है, बट एक्चुअली चाइना है, अरुणाचल प्रदेश है हमारा पार्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट एक टेम्पल है, बुद्धिस्ट टेम्पल, तांबे या कुछ ऐसे नाम है, जिसके जो हेड है, जो हेड है लामा, उनका कहीं ना कहीं पॉलिटिकली चाइना में थोड़ा थोड़ा सा रिलेशन है, पॉलिटिकल रिलेशन, जिसकी वजह से चाइना क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश को। तो चाइना हमेशा से चाहता ही है कि जो 7 सिस्टर्स है वो उनके पार्ट बन सके, ठीक है। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना चाहिए कि लामा और चाइना के बीच में जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश पे जो रोड प्रोजेक्ट बन रहा है, हमारे पे क्या इफेक्ट होगा। अगर इंडिया चाइना का रिलेशन लिखना हो तो यू कैन इंक्लूड दिस ऑल्सो इन योर प्रोजेक्ट, इन योर आंसर, क्योंकि यारलोंग जांगबो जो है वो हमारे लिए सभी तरह से अफेक्टेड है, पॉलिटिकली भी है, पॉलिटिकली भी है, इकोनॉमिकली भी, सोशल भी, लोगों को वहाँ से हटाना पड़ेगा। एनवायरमेंटली सबसे बड़ा है, एनवायरमेंट में तो आप बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर सकते हो कि वाई इट इज़ नेसेसरी। Now we'll move to the next article. The next article states that India's big problem is the lack of scale, ठीक है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें, हम वन ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट जिनका नाम है पवन गोयनका, उनका ये मानना था, उनके इंटरव्यू के टाइम उनको ये चीज़ पूछा गया था, एंड ही स्टेटेड कि इंडिया में स्केल्स की कमी है। स्केल्स की कमी है बेसिकली मतलब क्या है कि जो लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल है उसके बीच में इंडिया को प्रॉपर डिवीजन करना चाहिए कि किस पर कितना अमाउंट स्पेंड करेंगे या किसको कितनी ज़रूरत है। सो उन्होंने पॉइंट वाइज सभी चीज़ें बताई गई है कि किस किस चीज़ के लिए हम इंडिया को चेंजेस लाने की ज़रूरी है। सो इंडस्ट्री प्लेयर्स लार्जली वांट टू डू व्हाट इज़ गुड फॉर इंडिया इवन इफ देयर मे बी सम ऑफ द एक्सेप्शंस जस्ट लाइक स्केल्स। Chairman Pawan Goenka, while the committee is fleshing out sectors specific the policy advice, it is also identified as the horizontal enablers that India needs to fix or become more competitive across the boards. Now what are the biggest challenges that are facing, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया की जो वर्किंग सेक्टर है, जो अनस्किल्ड लेबर्स हैं, ठीक है, लेबर्स का कॉस्ट कम है यहाँ पे, उस हिसाब से हमारा कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा होना चाहिए। सिंपल एग्जांपल अगर मैं बताऊँ, क्यों चाइना की प्रोडक्ट्स हमें इतनी सस्ती मिलती है। कभी सोचा है कि क्यों वही चीज़ अगर एक टॉय इंडिया में शायद वो टॉय 100 रुपीज़ का मिले, बट वही सेम टॉय जब चाइनीज़ या मेड इन चाइना होता है दैट इज़ 50 to 60 रुपीज़ में मिलता है। वो इसके लिए क्योंकि चाइना के पास जो मैन पावर है, जो वर्कर्स हैं, वो इन लार्ज हैं, इतने सारे हैं कि इतना प्रोडक्शन होता है कि उनको कम में बेचना ही पड़ता है, नहीं तो वो कमोडिटीज़ या मैन्युफैक्चरिंग वैसे के वैसा रह जाएगा। दैट इज़ द सेम थिंग इंडिया में। इंडिया के पास मैन पावर है, और दूसरी बात, इंडिया के जो मैन पावर्स हैं उनके जो इनकम्स हैं उस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग बहुत होता है। सो इंडिया कैन बी अ कॉम्पिटिटिव कंट्री, इंडिया कैन फेस अदर कंट्रीज ऑल्सो इन इकोनॉमी, बट देर आर सम ऑफ द वी कैन से लैकिंग सेक्टर्स जो इंडिया को अपना इम्प्रूव करना पड़ेगा। There are few overall themes that run across almost all the sectors we are putting. We talk a lot about ease of doing business, but the biggest problem India has is the lack of scale. India needs to come forward and invest for large scales, and the government needs to complete the viability gap. Viability gap का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल एक प्राइवेट सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर एक प्रोजेक्ट ला रहा है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट बना रहा है। फॉर एग्जांपल इट इज़ फॉर दी एक रूरल एरिया में एक प्रॉपर क्या बोल सकते हैं हम, रूरल एरिया में हाईवे बन रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हाईवे बनाया जा रहा है। हाईवे का प्रोजेक्ट का जो वर्किंग है वो 100 करोड़ का जा रहा है, ठीक है, और वो जो कंपनी है जो कर रही है उसके पास शायद सिर्फ 70 करोड़ का तक का बजट है।
सो जो 30% है वो वायबिलिटी गैप है, तो वो जो गैप है 70 और 100 के बीच में जो 30, वो गवर्नमेंट को देना चाहिए ताकि प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाए। तो दैट इज़ द वायबिलिटी गैप, जो गैप आ रहा है, जो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, वो गवर्नमेंट को कंप्लीट करना चाहिए। तो इन्होंने एक एक करके सब चीज़ें बताई हैं कि कौन से बैकलॉग्स हैं इंडिया के, जो इंडिया को क्लियर करना चाहिए। सबसे पहला इस प्रॉपर लार्ज स्केल में इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इंडिया को। उसके बाद सेकंड अगर हम बात करें, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ लैंड। कॉस्ट ऑफ लैंड, इंडिया की बात अगर हम करें, इंडिया का कॉस्ट ऑफ लैंड इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इंडिया के लिए इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में लैंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, वेरी एक्सपेंसिव फैक्टर। तो उस पर उतना पावर, उतना अमाउंट लगाना इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर द इंडस्ट्रियल पावर, जिसके वजह से कितने बार प्रोजेक्ट्स आधे में हो जाते हैं या फिर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, क्योंकि वो लैंड ही इतनी एक्सपेंसिव है, ठीक है। सो उस पर काम करना चाहिए, थोड़ा लैंड के रिलेटेड कॉस्ट ऑफ लैंड्स पे काम करना चाहिए ताकि मैन्युफैक्चरिंग और हो पाए, ठीक है। उसके बाद अभी अगर नेक्स्ट फैक्टर देखें तो दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैकेनिज्म पे जितना पैसा, आई थिंक सो वर्कर्स या फिर मैन पावर्स में नहीं जाता, उतना मैकेनिज्म के पीछे पैसा चला जाता है, डेप्रिसिएशन में चला जाता है, वेयर एंड टेयर, कुछ ना कुछ रीज़न से कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज़्यादा है, यूज़ होता है यहाँ पर, ठीक है। सो इफ़ यू लीव असाइड द करेंट लो कॉस्ट कैपिटल बिकॉज ऑफ द कोविड, द लो इंटरेस्ट रेट, अभी के टाइम पे सबसे लो इंटरेस्ट रेट चल रहा है बिकॉज ऑफ द कोविड, देन हाँ 20 to 30% इज़ हायर। अभी का जो रेट है उससे 20 से 30% हायर रहता है हमेशा से कैपिटल का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ उन्होंने बोला है कि जो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ होता है दैट इज़ लॉजिस्टिक। इंडिया का अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी, इंडिया का लॉजिस्टिक जो है 70% ऑफ द रेवेन्यू हमारी जीडीपी की लॉजिस्टिक में जाती है, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन और जो भी गुड्स का ये। और ग्लोबली अगर हम बात करें, ग्लोबली 8% है लॉजिस्टिक का वैल्यू रेवेन्यू, तो हम कहीं ना कहीं 5% ऑफ द लॉजिस्टिक डिसएडवांटेज में हमारे लिए, ठीक है। सो इंडिया हैज़ 5% disadvantages because of the logistic cost. Obviously the disadvantage cannot be made up by the industries in the labor cost, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया है, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ वन इज़ द एक्टिविटीज़, लेबर प्रोडक्शन एंड द एक्टिविटीज़। इंडिया के पास इतना लेबर प्रोडक्शन है बट उसको इफेक्टिवली यूज़ नहीं करना इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स। जैसे कि एमएसएमई, ठीक है, जो उसकी एमएसएमई जो आज के टाइम पे इट इज़ एक्चुअली क्रिएटेड, जो एमएसएमईज जो बहुत स्मॉल स्केल पे चालू किए थे, इट इज़ ऑल्सो वर्किंग एट अ वेरी लार्ज स्केल करेंटली। बट क्या हो रहा है कि उसके मतलब एमएसएमई के सेक्टर की वजह से शायद उस पर कोई ध्यान नहीं देते लार्जर पर्सपेक्टिव में। So the strength of the micro, small and medium enterprises, because while the scale will be created by the large companies, they cannot do everything themselves without a strong MSME sectors. So the government's focus always has to be making MSME strong, working together with the industry. उनका ये बोलना है कि अगर गवर्नमेंट एमएसएमई पे ध्यान देगा, लार्जर पर्सपेक्टिव पे उस पर काम करेगा, तो शायद इट कैन इम्प्रूव दी वर्किंग ऑफ इकोनॉमी। सो दिस आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो उन्होंने बताया है कि इंडिया को इस पर काम करना चाहिए, इंडिया गवर्नमेंट को इस पर काम करना चाहिए, सो दैट इट हमारा जो स्केल गैप है हमारे इकोनॉमी का वो थोड़ा इम्प्रूव हो सके। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। द नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट्स दैट 28 कैंसल, मैनी डाइवर्टेड अहेड ऑफ साइक्लोन। इसके बारे में अगर हम बात करें तो गुलाब साइक्लोन के बारे में पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया है कि गुलाब साइक्लोन आने वाला है, जिसके वजह से जो 28 फ्लाइट्स थे उसको कैंसिल कर दिया गया। गुलाब साइक्लोन किस तरफ आ रहा है हमारे, तो इट इज़ बेसिकली कमिंग टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल, जिसकी वजह से ओडिशा के बहुत सारे चीज़ों को फ़िलहाल अलर्ट पे रख दिया गया है। So the east coast of the railway cancelled 28 trains, diverted 5 trains and rescheduled 8 as Cyclone Gulab made the landfall in Longapatnam, affecting the North Andhra Pradesh and South Odisha. 11 trains were regulated in Southeast Central and South Central Railways jurisdiction.
The cyclone storm caused a significant damage in the 8 mandals close to the coast of Srikulam districts of Andhra Pradesh. Life was thrown out of the gear since morning as several places were experienced by heavy rains. Hundred of trees were uprooted in several mandals. Mandal is basically डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट नहीं बोल सकते बट रूरल एरियाज में मंडल्स बोला जाता है प्रॉपर छोटे छोटे सेक्टर्स को. सो पावर सप्लाई वाज अफेक्टेड, सो ऑफ मेनी रीजंस इन द टिकेली डिविजन्स इन द इलेक्ट्रिकल पोल्स फेल आउट. Heavy rains were reported at Sandhipeta, Rajapuram, Bhavanpadu, and many villages where Gulab made a landfall. अब गुलाब के बारे में अगर हम बात करें, ये जो नाम है, हमारे जितने भी साइक्लोन्स आते हैं, टाउक्टे आया, यास आया, गुलाब आया, ठीक है, ये सबको जो नाम है ये हमारे अलग अलग कंट्रीज देते हैं. जैसे कि ये जो गुलाब नाम है इट इज़ गिवन बाय पाकिस्तान. ठीक है. सो हाँ, गुलाब का जो नाम है पाकिस्तान का दिया हुआ है. जो टाउक्टे आया था, टाउक्टे हमारा इस तरफ आया था अरेबियन सी की तरफ, वेरस यास जो था वो गुलाब बे ऑफ बंगाल के तरफ पे आया था. सो ये जो नाम है जितने भी लिस्ट बनाते हैं साइक्लोन्स के, इट इज़ गिवन बाय IMD, दैट इज़ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. इनको फ्यूचर जो ये नाम है, ये एक पहले से लिस्ट तैयार हो जाती है कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में जो भी अभी फॉर एग्जांपल एक लिस्ट बन गई है, 169 साइक्लोन्स के नेम एक साल में बन जाते हैं. ठीक है, 1 2 3 4 हम इधर लेते हैं टाउक्टे, यास, गुलाब, ऐसा नाम ले लेते हैं. ठीक है. तो अभी अगर कोई भी सबसे पहला साइक्लोन है उसको टाउक्टे का नाम देंगे, उसके बाद वाला यास को देंगे, उसके बाद वाला गुलाब देंगे. उसका भी एक प्रॉपर रीज़न है क्यों ऐसे नाम्स और ये चीज़ हुए जाते हैं. तो सबसे पहले इनका नामिंग जो है वो IMD लिस्ट तैयार करके रख लेता है. अब ये जो लिस्ट है दिस इज़ द लिस्ट ऑफ 169 साइक्लोन्स नेम विच इज़ रिलीज बाय द IMC. ठीक है. एंड ये जो 169 नेम्स है इट इज़ प्रोवाइड बाय द 13 डिफरेंट कंट्रीज. तो 13 जो कंट्रीज़ है, ये 13 कंट्रीज ऐसे सब अपने अपने 13 नाम देकर रखते हैं हर साल. ठीक है, कि अगर साइक्लोन्स आया तो उनको ये सब नाम देंगे. अब ये प्रॉपर कैसे होता है, तो हमारा जो रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर है और ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स हैं, ये लोग अक्रॉस दी ओशन जो नाम है इसके लिए लिस्ट तैयार करते हैं. अब इसमें होता क्या है, तो हमारे जो 13 कंट्रीज़ हैं ना, अब आप पूछोगे 13 कंट्रीज़ कौन से हैं, तो इट कंसिस्ट ऑफ बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड और उसके बाद ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE दैट इज़ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड येमेन. ये 13 कंट्रीज़ एक ही बार में अपना नाम दे देते हैं. और ये कंट्रीज़ जो हैं A to Z के ऑर्डर में इनके कंट्रीज़ के नाम के हिसाब से फॉलो होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं इंडिया, ठीक है, इंडिया ले लेते हैं, ईरान ले लेते हैं. इंडिया I है, तो I के बाद जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट होगा, जैसे कि अगर ले लेते हैं हम M, ठीक है, तो म्यांमार का नाम जो दिया हुआ है म्यांमार का, वो ईरान के बाद यूज़ होगा, ना कि ईरान से पहले होगा. एक प्रॉपर ऑर्डर में चलता है. सो इन 2000 ये जो प्रॉपर जो सिस्टम ये 2000 से स्टार्ट हुआ था. एक ग्रुप ऑफ नेशंस लोग सब साथ में आए थे जिन्होंने एशिया के रिलेटेड जो साइक्लोन्स हैं उनको नाम देना स्टार्ट किया था. तो जब 2000 में ये बॉडी बनी थी, इसके मेंबर्स इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड ही थे उस टाइम पे. उसके बाद 2018 में और 5 कंट्रीज़ को उसमें जोड़ दिया गया, जो कि थे ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और येमेन. तो हर कंट्रीज़ अपने तरफ से ऐसे 13 नाम सजेस्ट करके रखते हैं और कंट्रीज़ का जो नाम है वो अल्फ़ाबेटिकली डाल के रखते हैं वो लोग. तो जैसा सबसे पहले अगर सोचिए A से तो नहीं है, B से बांग्लादेश है, तो अगर ये साल का जो पहला साइक्लोन होगा वो बांग्लादेश का दिया हुआ नाम को यूज़ करेंगे. ठीक है. अब C से नहीं है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं कौन सा नाम, C के बाद आप ले लीजिए, C के बाद क्या लेंगे आप, चलिए हम ले लेते हैं ईरान ले लेते हैं. ईरान हो गया, इंडिया हो गया. ठीक है. तो बांग्लादेश के बाद नेक्स्ट नाम इंडिया का यूज़ होगा, उसके बाद ईरान का यूज़ होगा, उसके बाद म्यांमार का होगा. तो A to Z के ऑर्डर में इनके नाम यूज़ होते हैं.
जो कि इन लोगों ने सजेस्ट किया है. तो ईच कंट्री सेंड्स अ सजेशंस दैट विल बी फाइनलाइज्ड एंड प्रिपेयर्ड अ लिस्ट by the panel on tropical cyclones. The list of 169 cyclones name is released by IMD, जो कि हर कंट्रीज 13 नाम देते हैं. Therefore 13 into 13 169. ठीक है. सो ये क्यों नाम देते हैं? ये नाम इसके लिए रहता है कि हर एक जगह पर एक प्रॉपर डिफ्रेंसिएशन कर पाए कि इस जगह पर ये साइक्लोन ने अफेक्ट किया है. ठीक है. सिर्फ ये रीज़न है कि इनको प्रॉपर नाम दिया जाता है. अभी जब ये नाम बनाया जाता है तो इनको भी कुछ कुछ हेडलाइंस या इनको भी कुछ कुछ गाइडलाइंस ध्यान में रखने पड़ते हैं. द प्रपोज नेम शुड बी न्यूट्रल. ठीक है. पॉलिटिकल फिगर, रिलीजियस चीज़ें, ये सब चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए उसमें, ताकि वो किसी को भी अफेक्ट हो. ठीक है. And the name should be in such a way that it does not hurts the sentiments of the population of that area. ठीक है. एक छोटा सा कि रूट टू नेचर नहीं होना चाहिए. इट शुड बी अ शॉर्ट एंड अ स्वीट नेम. ठीक है. ज़्यादा से ज़्यादा 8 लेटर्स तक वो नाम जा सकता है. 8 लेटर्स से ज़्यादा वो नाम नहीं जाना चाहिए. ईजी टू प्रोनाउंस, ऐसा कुछ हार्ड मत रखो. ईजी टू प्रोनाउंस. और ये नाम को वापस रिपीट नहीं किया जाता. एक बार लेने के बाद इट इज़ नॉट रिपीटेड अगेन. जैसे इंडिया की बात करें तो इंडियाज़ ने जो 13 नाम दिया है था उसको गति, तेज, फिर मुरासू, अग, व्योम, जर. ठीक है. ऐसे कुछ नाम दिए थे. कितने बार कुछ कुछ वर्ड जैसे प्रोनाउंसिएशन में मुश्किल हो जाते कभी कभी. ठीक है. जैसे कि टाउकटे. ठीक है. यास. फिर अभी गुलाब. ठीक है. गुलाब पी ने दिया है, पाकिस्तान ने दिया है. तो पी के बाद जो नेक्स्ट कंट्री होगा उनका नाम यूज़ किया जाएगा फॉर द नेक्स्ट साइक्लोन. ठीक है. सो इन दैट वे साइक्लोन्स की नेमिंग की जाती है. सो आई होप सो आज का आर्टिकल आपको क्लियरली समझा होगा. इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.